SB8 న్యూస్కి స్వాగతం. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరులో జీఎంకే చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో పేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను లక్కీ డ్రా ద్వారా అర్హులకు ఎంపిక చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ASGMK చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ ముజీబ్ ఖాన్, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ నీరజా బాలరెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు RBOL CEO శ్రీనివాసరెడ్డి మరియు ఆయా వార్డుల కౌన్సిలర్లు, నాయకులు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథులు మాట్లాడుతూ ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన మాట ప్రకారం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పేదలకు ఇస్తామన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను అర్హులైన 200 మంది నిరుపేదలకు ఇచ్చి మాటను నిలబెట్టుకుందని గుర్తు చేశారు. పేదల సంక్షేమం కోసం కృషి చేస్తున్న గొప్ప సంఘ సేవకుడని నాయకులు కొనియాడారు. తన సొంత డబ్బులతో పేదల ఆదుకుంటున్న ఘనత ఆయనకే దక్కిందని అన్నారు. 500 మంది అర్హులలో నేడు 200 మంది లబ్ధిదారులను లాటరీ ద్వారా ఎంపిక చేయడం జరిగిందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ASGMK చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ ముజీబ్ ఖాన్తో పాటు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ నీరజా బాలరెడ్డి, వైస్ చైర్మన్ అబ్దుల్ రజాక్, వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ పట్లోళ్ల నరసింహులు, RBOL CEO శ్రీనివాసరెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు అబ్దుల్ రాఫూఫ్, జుబేర్ లాలా, కౌన్సిలర్లు, ASJNK చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ప్రతినిధులు, న్యాయవాదులు మహమ్మద్ ఫరీద్, మతీన్, ముస్లిం మైనారిటీ సంఘాల ప్రతినిధులు, లబ్ధిదారులు పాల్గొన్నారు. ASGMK ట్రస్ట్ చైర్మన్ అయినటువంటి ముజీబ్ ఖాన్ గారు ఒక ట్రస్ట్ నడిపియాలంటే గట్స్ కావాలి. ఎందుకంటే తనకు 10 రూపాయలు వస్తే 2 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలంటే ఆ గట్స్ ఉన్న వ్యక్తులు మాత్రమే చేయగలుగుతారు. అటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజు 200 ఇళ్ళు ఎమ్మెల్యే మనోహరెడ్డి గారికి మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో చెప్పి ఖచ్చితంగా మా వాళ్ళకి ఇప్పిస్తానని ఏదైతే మాట చెప్పిండో ఆ మడమ తిప్పకుండా ఈ రోజు చేసేటందుకు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి ముందుకు వచ్చినటువంటి ముజీబ్ ఖాన్ గారికి మరియు ASGMK ట్రస్ట్ ప్రెసిడెంట్ అయిన షఫీ గారికి మరియు ఇక్కడికి వచ్చిన మన ప్రథమ పౌరురాలైనటువంటి నీరజా బాలరెడ్డి గారికి మరియు అలాగే వైస్ చైర్మన్ అయినటువంటి హ్యాట్రిక్ కౌన్సిలర్ రజాక్ భాయ్ గారికి, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి కౌన్సిలర్లందరికీ మరియు ఇంతకుముందు మాట్లాడిన మా AMC చైర్మన్ నరసింహన్న గారికి మరియు నా మిత్రులైనటువంటి రావు గారికి, జుబేర్ లాలా గారికి, ఇక్కడ ఇంకా కొంతమంది చాలా మంది పేర్లు నాకు తెలియదు ఏమన్నా, ఇక్కడ ముందర కూర్చున్న సోదరులకు మరియు విలేకరుల సోదరులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. ఒక ఇల్లు ఇవ్వాలంటే ఎంత కష్టం, ఒక 10 రూపాయలు జేబులోకి వెళ్ళి తీసి ఖర్చు పెట్టాలంటే ఎంత ఇబ్బంది అవుతుందో అందరికీ తెలుసు. కానీ అటువంటివి కూడా 10 రూపాయలు నేను సంపాదిస్తే 2 రూపాయలు నేను ప్రజల కోసం చేస్తానని మన ముందరకు వచ్చిన ASGMK చైర్మన్ అయినటువంటి ముజీబ్ ఖాన్ గారు మనకు ఇల్లు కానీ ఫుడ్ విషయంలో కానీ ఇంతమందికి సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారంటానంటే నేను ఆయనకు శిరస్సు వంచి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ గట్స్ అనేది అందరికి ఉండదు. ఉన్నోళ్ళని వాళ్ళని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఎంకరేజ్ చేయకుండా ఇటువంటి చేసే ముజీబ్ ఖాన్ గారు అటువంటి వ్యక్తులను ఏం చేస్తారంటే డిస్కరేజ్ చేస్తారు. డిస్కరేజ్ చేస్తుంటే తనను మనం చూసుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఖండించం. అలాంటి పని చేయకుండా ఇలాంటి వ్యక్తులు ముందరకు వస్తుంటే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో ముజీబ్ ఖాన్ గారు మాట తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే మా సోదరులకు చాలా మందికి ఇల్లు లేవు, మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మాకు కూడా అవకాశం కల్పిస్తే చాలా మందికి లేని వాళ్ళకి ఇస్తాము, ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి ఇవ్వము, ఖచ్చితంగా లేని వాళ్ళకి ఇస్తాము. మీరు మాట ఇవ్వండి అన్న. నేను మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో 30 సంవత్సరాల నుంచి ఎప్పుడు కూడా మెజార్టీ రాలేదు, కానీ ఈసారి మెజార్టీ తెచ్చి చూపిస్తాం అని మాట ఏమైతే ఇచ్చిండ్రో ఆ మాట కట్టుబడి నిలబడ్డారు. మన ఎమ్మెల్యే గారు నేను మాట ఇచ్చిన మడమ తిప్పను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అని ఈ రోజు ఆ అవకాశం కూడా మన ముజీబ్ ఖాన్ గారికి ఇచ్చారు. ఖచ్చితంగా ఇంతమందికి 200 మందికి కాదు, ఇంకా లేనోళ్ళకి అందరికి కూడా ఇప్పుడు ఇంకా 500-600 ఇండ్లు ఉన్నాయి. దానిలో లేనోళ్ళ చూసి ఇస్తాముండి ఇంకా సరిపోకపోతే కూడా ఒక్కొక్కరికి 72 గజాల ప్లాట్ ఇచ్చి 5 లక్షల రూపాయలు ఇప్పించే పూజీ కూడా తీసుకుంటాము. ఇంతమంది అయితే ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్నాము. అందరూ కలిసి తీసుకొని మీ అందరికీ ఇల్లు లేని వారికి అందరికీ ఖచ్చితంగా ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో ఇల్లు ఖచ్చితంగా ఇప్పిస్తాము. రేషన్ కార్డులు లేకపోతే రేషన్ కార్డులు ఇప్పిస్తాము. కరెంటు కూడా ఫ్రీ ఉంది, ఫ్రీ లేనోళ్ళకు కూడా చేపిస్తాము. ఈ తాండూరులో కూడా మొత్తం రోడ్లు కానీ డ్రైనేజీలు కానీ
ఇంతవరకు తాండూరులో ఏముందంటానంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ బాగాలేదు. ఆ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మంచి చేసుకుంటూ మన దగ్గర ఏటీసీ సెంటర్లు ఇప్పుడు ఏదన్నా పని నేర్చుకుంటే జాబ్ రావడానికి కూడా 4-5 సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు రెడీగా ఉన్నాయి. అలాగే మేము కూడా జాబ్ ఇవ్వడానికి 150 మందికి జాబ్ ఇవ్వడానికి నేను కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఎక్కడ ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఫ్యాక్టరీ పెట్టాము, జాబ్ ఇస్తాము, కానీ మీరు స్కిల్ నేర్చుకోండి, స్కిల్ నేర్పడానికి కూడా ఉన్నారు. మొన్న ముజీబ్ఖానా గారు కూడా మీకు సాధ్యమైనంత వరకు కుట్టు మిషన్లు కానీ ఇలాంటివి కూడా ఇస్తున్నారు. అవన్నిటిని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఇంకేదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ సహాయ సహకారాలు మా అందరూ ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి. ఈ తాండూరులో కూడా మొత్తం రోడ్లు, డ్రైనేజీలు అన్నీ ఈ మన మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు కానీ, వైస్ చైర్మన్ గారు కానీ, ఎమ్మెల్యే గారు కానీ, వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉన్న కౌన్సిలర్లు కానీ అందరూ కలిసి ఖచ్చితంగా ఈ 3 సంవత్సరాల లోపల 70-80% కంప్లీట్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మీ సభాముఖంగా. ఎందుకంటే వీళ్ళే పనిచేసేటోళ్ళు, వీళ్ళు చేపిస్తే ముందర ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లో ఓట్లు అడుగుతామంటాను. నేను ఇంతకుముందు సభాముఖంగా చెప్పాను. వీళ్ళందరికీ దయచేసి నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నాను, మీరు కష్టపడండి, కష్టపడి ఇవన్నీ చేపియండి. ఎందుకంటే డబ్బులు తీసుకురావడానికి ఎమ్మెల్యే గారు రెడీగా ఉన్నారు. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మన పక్క కాన్స్టిట్యున్సీ మనకు కావాల్సిన వ్యక్తే. డెవలప్మెంట్కు డబ్బులు ఇవ్వడానికి ఆయన రెడీగా ఉన్నారు. మీరందరూ ఉరుకుల పరుగుల మీద పని చేపియాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ, ఇక్కడ వచ్చిన సోదరుమణులకు ఎందుకంటే మా మున్సిపల్ ఎలక్షన్ లో భాగంగా మనోరేతన్న ఆధ్వర్యంలో ముజీబ్ఖానా గారు మున్సిపల్ ఎలక్షన్ లో గట్టిగా మాకు సపోర్ట్ చేసి ఈ రోజు మున్సిపల్ లో కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరవేయడం జరిగింది. దానికి అన్నగారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే తన 36 వార్డుల లోపల అన్ని కౌన్సిలర్లకు ఎంకరేజ్మెంట్ చేసి తను ఈ రోజు ఏదైతే మనోరేతన్న దగ్గర తీసుకున్న మాట 200 ఇళ్ళు ఏదైతే పేద ప్రజలకు పంచి పెడతామనే మాట తీసుకొని ఈ రోజు సాధించుకోవడం జరిగింది. దానికి చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే చాలా మంది మీడియా ముందు ముజీబ్ఖానా గారికి 200 ఇళ్ళు ఎందుకు ఇస్తున్నారనేది అన్నారు. కానీ తన సొంత స్వభావం కాకుండా పేద ప్రజలకు ఏదైతే ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇల్లు ఇవ్వాలనే ఒక ఉద్దేశంతో మేము మీకు ఎలక్షన్ లో వెన్నంటి ఉండి మా పేద ప్రజలకు న్యాయం చేస్తానని తాను అందరికీ సహాయం చేయడం జరిగింది. మున్సిపల్ ఎలక్షన్ లో వారికి ఈ రోజు మీరందరూ ఇక్కడ ఉన్న మహిళలు కానీ అన్నలు కానీ అందరూ మనము జీవితాంతం రుణపడి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇల్లు అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఎంతో మంది ఎదురు చూస్తున్న రాని పరిణామాలు ఉన్నాయి. కానీ 200 ఇళ్ళు అన్నగారితో ఎమ్మెల్యే గారితో కొట్లాడి తీసుకోవడం ఆషామాషి పని కాదది. చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే ఒక తను ఎంతో మంచి హృదయంతో తనకు ఆస్తి లేక కాదు, మస్తు ఆయన అనుకుంటే ఏదైనా పని చేయగలడు. ఎంతో మందికి హాస్పిటల్ విషయంలో కానీ, విద్యా విషయంలో కానీ, శిక్షణ కుట్టు విషయంలో శిక్షణ కార్యక్రమాలు, ఎన్నో కార్యక్రమాలు తను సేవ చేయడం జరుగుతుంది తాండూరు ప్రజలకు. కానీ ఒక పేద ప్రజలకు ఒక గవర్నమెంట్ ద్వారా లబ్ధి చేయాలనే ఒక మంచి ఆలోచనతోని మంచిగా మన తాండూరు ప్రజలకు సేవ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే అన్నగారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఇంతమంది పేద ప్రజలకు ఇళ్ల పంపిణీ అంటే ఒక ఏ ఆశ లేకుండా ఇంతమందికి పంచిపెట్టడం అసాధ్యం, కానీ అన్నగారి వల్ల సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి మీ జిఎంకే ట్రస్ట్ కు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అలాగే అన్నగారికి ఒక చిన్న విన్నపం. మేము కూడా మున్సిపల్ నుండి అన్న మాకు ఏదైనా మీ జిఎంకే ట్రస్ట్ ద్వారా బోర్ల విషయంలో సహాయం చేయాలని. ఎందుకంటే తాండూరు లోపల నీటి ఎద్దడి చాలా ఉంది. అలాగే కొన్ని వార్డుల లోపల ఇంకా మాకు నీరు అందించలేకపోతున్నాము. ఇంతకుముందు రావుపై గారు మేము కౌన్సిలర్ ఉన్నప్పుడు రేమాన వాళ్ళ నుంచి బోర్లు వేయించడం జరిగింది. అలాగే మీ సహృదయంతో మా ఎక్కడైతే వాటర్ లేదో అక్కడ మాకు కొన్ని బోర్లు పంపిణీ చేస్తారని, మీ గొప్ప మనసుతో మున్సిపల్కి సహాయం చేస్తారని కోరుకుంటూ, ఇంకా ఇక్కడ చాలా మంది పెద్దలు ఉన్నారు. ఎందుకంటే మేము
చేయాలనే మంచి ఆశతో ఇక్కడికి మనగవేటల గారు మమ్మల్ని తీసుకురావడం జరిగింది. వారికి కూడా మంచి పేరు తీసుకురావాలంటే ప్రతి ఒక్కరి తాండూరు ప్రతి ఒక్కరి సహాయం తీసుకుంటేనే మేము ముందుకు వెళ్తామని ఇంతకుముందు శ్రీనివాస్ రెడ్డి అని చెప్పారు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క కౌన్సిలర్ కూడా ఏదైతే వార్డు లోపల ప్రజలకు న్యాయం చేస్తే రేపు రాబోయే ఎలక్షన్ లో వారు కూడా మమ్మల్ని ఆదరిస్తారని ప్రతి ఒక్కరికి విన్నవించుకుంటూ, తాండూరులో ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద సంస్థల వారు ఉన్నారో వారందరూ మాకు సహాయం చేయాలని కోరుకుంటూ ఇంతటి అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు రౌబాయ్ గారికి, అలాగే ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కమలాతన్ గారికి, సభని అలంకరించిన మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లందరికీ, ఈ రోజు ముఖ్యంగా సభ వేదిక పైన ఉన్న అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ముందున్నటువంటి మహిళా సోదరి మనులందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ముజీబ్ ఖాన్ గారు ఎలక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు మన ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తేవడం జరిగింది. ఇక్కడున్న తాండూరు ప్రాంతంలో మైనార్టీ సోదరులు ఎంతో బీదరికంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ బీదరికంలో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇవ్వాలని ముఖ్యంగా ఆయన కోరడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ రోజు ఎమ్మెల్యే గారు 200 ఇండ్లు ఇస్తామని మాట ఇవ్వడం, అలాగే మళ్ళీ కూడా ఇందిరమ్మ ఇళ్లలో భాగస్వామిగా ప్రతి వార్డులో ఇప్పిస్తామని మన ఇచ్చినటువంటి మాటని ఈ రోజు ఎమ్మెల్యే గారు నిలబెట్టుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రతి కార్యకర్త కూడా కష్టపడి ఈ రోజు మున్సిపల్ పై జెండా ఎగరేసిన ఘనత కూడా ఈ మున్సిపల్ లో ఈ ఘనత ముజీబ్ ఖాన్ గారికి, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, రౌబాయ్ గారికి దక్కుతుందని ఈ సభా వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ రోజు మధ్యతరగతి ఉన్నటువంటి బీద బడుగు వర్గాలకు హిందూ మైనార్టీ క్రిస్టియన్ అని తేడా లేకుండా అందరి కూడా మన ముజీబ్ ఖాన్ గారు దాని లిస్టులో భాగంగా అందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతుందని ఈ సభా వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ రోజు మన మనోరంజన్ గారు అభివృద్ధి చేయాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో తాండూరులో ఉన్నటువంటి వెనుకబడ్డ ప్రాంతం, కర్ణాటక భాగంలో ఉన్నటువంటి తాండూరు ప్రాంతాన్ని ఎంతో ముందు చూపుతో ఈ రోజు పరుగులు తీస్తున్నది, అభివృద్ధి పథంలో పరుగులు తీస్తున్నటువంటి ఘనత కూడా మన బియ్యని మనోరెడ్డి అన్న గారి ఎమ్మెల్యే గారికి దక్కుతుందని ఈ సభావేదిక ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ రోజు మన మైనార్టీ సోదరులు కానీ छोटे छोटे काम से लेकर बड़े बड़े काम तक गरीबों की, खास करके गरीबों की मदद की है। इसीलिए आज अल्लाह ने उन्हें मौका दिया है कि 200 घर बांटने के लिए मुझे काम को दिए गए हैं मेरे साथ की तरफ से। ये कोई मामूली बात नहीं है। तेलंगाना में कहीं भी कोई जाता है, जानता हूँ किसी की नहीं है, किसी ट्रस्ट को नहीं है, किसी दूसरे को नहीं है, मगर यहाँ तांडूर में हमारे डीएम के हमारे मुजीब खान साहब को दिया गया है मौका। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह जो महिलाओं को 6 गारंटी दिए हैं तो कंपलसरी हमारे मुजीब खान की जानिब तरफ से कंपलसरी हम लोग पूरी कोशिश करके आपको दिलाएंगे। हर घर में जो 2500 रुपये देने का वादा किया गया है वो भी पूरा करेंगे। और जो शादी मुबारक में एक तो सोना वो भी जल्द से जल्द आने वाला है इंशाअल्लाह। और जो भी 6 गारंटीज में जो एमएलए साहब और हमारे सीएम साहब ने जो गारंटीज दिए हैं इंशाअल्लाह उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। जय हिंद। ఆధారంలో ఈ డబ్బులను గాదికి వచ్చిన పెద్దలు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, అలాగే ముజీబ్ ఖాన్ గారికి, రౌబాయ్ గారికి, రామ్ గారికి, మున్సిపల్ చైర్మన్ వీరజ గారికి, చైర్మన్ ప్రజా గారికి, వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ, కౌన్సిలర్లకు, వేదిక పైన ఉన్న మైనార్టీ సోదరులందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు చెప్తూ, ఏదైతే మొన్న మున్సిపల్ ఎలక్షన్లలో ఎమ్మెల్యే గారు ముజీబ్ ఖాన్ గారికి వాళ్ళ ఖర్చు ద్వారా ఇస్తామన్న ఇండ్లు ఈరోజు ఈ డ్రా పద్ధతి ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏదైతే కొందరు తప్పుగా మాట్లాడారు కొన్ని ప్రెస్ మీట్లలో, దానికి ఈరోజు ముజీబ్ ఖాన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆ ఇండ్లని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఈ సభని చూసి మీరు తెలుసుకోండి, మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఇస్తున్నారా లేదండి. ఎందుకంటే మనరన్నా ఏదన్నా మాటించిందంటే అది చూచా తప్పకుండా పాటిస్తుంటారు. కొందరు ఎందుకు ఇస్తారు మనమే ఇస్తాము అంటే ముజీబ్ ఖాన్ పై మన కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళే మొన్న
కౌన్సిలర్ ఎలక్షన్ లో ఎంతో మనకు పార్టీకి సేవ చేసిండు. ఆ మాట తప్పకుండా మనకన్నా ముందుకు గారికి 200 ఇల్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫేజ్ 1 లో 100 ఇల్లు ఇస్తారు, ఫేజ్ 2 లో 100 ఇల్లు ఇస్తారు. దాంతో పాటు ఇంతకుముందు ఉన్న ప్రభుత్వం అనేది డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తాం అనేది ఎక్కడికి లేదు. మన టౌన్లోనే కాకుండా రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఎక్కడ ఏ గ్రామ పంచాయతీలో చూసినా ఇందిరమ్మ ఇల్లు అనేవి వస్తాయి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు చెప్పడమే కానీ చేయడం కాదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే చెప్పిందంటే చూచే తప్పకుండా ఇస్తుంది. కాకపోతే ఉన్నది ముందు 2014లో ఉన్న గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రోజు మిడిల్ బడ్జెట్ ఉండే, ఈ రోజు వాగ్దానాలు చేసుకోవాలి. కాబట్టి మనము ఒక్కొక్కటి డబ్బులుగా ఏదైతే మాట ఇచ్చినామో మళ్ళీ మాట తప్పకుండా అందించి మళ్ళీ ఎలక్షన్ల కోసమని కోర్టు ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ వచ్చేసిన ఇక్కడ తాండూరు అందరికీ నమస్కారం. అదేవిధంగా మన జిఎంకే ట్రస్ట్ ముజిబ్ ఖాన్ సార్ గారికి, ఆర్బిఎల్ సీనన్న గారికి, మా చైర్పర్సన్ నీరజ బాలరెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా రజాక్ భాయ్ గారికి, వైస్ చైర్మన్ గౌరవ్ గారికి, రజాక్ భాయ్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న మా తోటి కౌన్సిలర్లకు మరి అందరికీ కూడా నమస్కారం చేసుకుంటూ ఈరోజు ఒక చక్కటి ప్రోగ్రాం ఇది. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అంటే మన పేదలకు పక్షాన ఉండే ప్రభుత్వం. మన మనోహర్ రెడ్డి గారు మనకి ఏదైతే మాట ఇచ్చిందో ఎలక్షన్లో ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా ఈ పంపిణీకి శ్రీకారం చుట్టి ఆ మాట నిలబెట్టుకున్నాడు. అదే ఈరోజు ఇక్కడ పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది రాష్ట్రం ద్వారా. కాబట్టి మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే మన పేద పార్టీ కాబట్టి మనం అందరం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని బలపరిచి ముందు కూడా అన్ని ఎలక్షన్లలో విజయం సాధించడానికి మనం అందరం సహకారం ఉండాలని చెప్పి తెలుసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. मुझे बताने की नजरिया है। आज इंदिरा हाउसिंग डबल बेडरूम का जो प्रोग्राम में हमारे खुसूसी मेहमान जनाब अलहाज मुजीब खान साहब एजीएम के चैरिटेबल के फाउंडर और चेयरमैन और हमारे खुसूसी मेहमान आज हमारे तांडूर के 19 काउंसलर्स और हमारे यहाँ पर आए हुए हैं मेरे माँ और बहनों और ट्रस्ट के जिम्मेदार इंचार्जेस, सोसाइटी के मेंबर्स और यहाँ पर मीडिया पे जो आए हैं उन तमाम लोगों का मैं अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूँ। और आपसे कहना चाहता हूँ कि 1 साल पहले जब मुजीब खान साहब ने तांडूर में एक ख्वाब देखा था कि तांडूर के लिए, अपने आवाम के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करने का एक जज्बा था। उसी जज्बे से लेकर मुजीब खान साहब ने तांडूर में, टाउन में 36 वार्डों में जो काम कर रहे हैं वह में खाली तारीफ है। ये वही मुजीब खान साहब है जो तांडूर में आकर अपने मिसाल कायम की है। जैसा तांडूर में आने के बाद यहाँ पर एजीएम में की हमारे मस्जिद अली और रज़ा की मस्जिद बनाई है। उसके बाद हमारे उलमा के लिए 105 प्लॉट अपने और वेंचर में उलमा को दिए हैं। आसपास जो बच्चे स्कूल फीस बने हैं और सिविंग मशीन 76 मशीन जो वुमेन्स को दिए हैं एजीएम के ट्रस्ट की तरफ से। और अम्बेडकर स्टैच्यू हमारे गांधी नगर के पास बनाकर एक गंगा जमुना की तहजीब कायम की है। यही मुजीब खान साहब है जिन्होंने तांडूर में डब्ल्यूपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट डालकर तांडूर में मिसाल कायम की है। खुर्शीद हुसैनी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आए। मोहम्मद खुर्शीद हुसैनी साहब मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, साबिका प्रेसिडेंट मोहम्मद खुर्शीद हुसैन साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप तांडूर में और 1000 स्कूल चिल्ड्रन को दिए गए हैं। और तांडूर के और हमारे तांडूर के वाइस चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आए। ये म्यूनिसिपैलिटी वाइस चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आए। ये वही मुजीब खान साहब है जिन्होंने तांडूर में हेल्थ कैंप लगाए हैं, आई कैंप लगाए हैं, जनरल कैंप लगाए हैं, खतरा कैंप लगाए हैं। आप लोग सब जानते हैं तांडूर में कितना यहाँ पर काम आ रहा है। तांडूर की तारीख में और डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये मिसाल कायम की है मुजीब खान साहब ने। मुजीब खान साहब ने यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर लगाए गए हैं, मेडिकल सेंटर लगाए गए हैं। यहाँ पर इंडिया कॉलोनी में
इंदिरा कॉलोनी में, राजीव गांधी कॉलोनी में यहाँ पर मिसाल कायम की है। वार्ड नंबर 17 के काउंसलर मैं मोहम्मद वसीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मोहम्मद वसीम साहब का। और यहाँ जो डबल बेडरूम दिया जा रहा है, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूँ जो आप लोगों ने क्या कीमती वक्त निकालकर इस प्रोग्राम को कामयाब कर रहे हैं। जो हकदार है उन्हीं को मुझे खान साहब ने तांडव ट्रस्ट के अंदर 21,000 लोग हमारे मेंबर थे, उस 21,000 लोगों मेंबर्स में से 500 मेंबर्स को चुना गया है। उस 500 मेंबर्स में आज चुनाव हो रहा है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूँ जो यहाँ पर आकर अपना कीमती वक्त निकाल इस प्रोग्राम को कामयाब किए हैं। और तमाम ट्रस्ट मेंबर को, तमाम ट्रस्ट के इंचार्जेस को, तमाम सोसाइटी मेंबर्स को और तमाम जितने हमारे खुशी से हम यहाँ पर आए हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जो मुझे बात देने का मौका दिया है, मुझे खान साहब का करते हैं। और अपनी मसरूफियत के बावजूद फिर भी अल्लाह के फजल करम से जैसा कि अभी ये जो आप प्रोग्राम आज रखा गया है, इस प्रोग्राम के पीछे लगभग 1.5 महीने की मेहनत है। 1.5 महीने से मेहनत की जा रही है, जिसमें मुस्तहिक लोगों को और उसमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो लोगों को हक पहुँच सके, ताकि गवर्नमेंट जो तेलंगाना की गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट है और खुसूसी हमारे MLA साहब मनोहर रेड्डी साहब ने जो GMK ट्रस्ट पे भरोसा किया है करके 200 घरों की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस तरीके से अल्लाह के फजल करम से मुजीब खान साहब का ये हुक्म था कि भाई तांडुर की आवाम जो ज़रूरतमंद है, मुस्तहिक है, वो लोगों तक ये पहुंच सके। तो उस तरीके से हम लोग पूरी GMK ट्रस्ट के मेंबर जितने भी यहाँ पर है, तो सारे लोग मेहनत करके अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह एक लीज सामने लाई गई है। तकरीबन लोगों को, कुछ लोगों को साथी मकान भी थे, उसमें भी इंक्वायरी करके हटाया गया है। जो लोग को मकान नहीं है, जो लोग किराए के घरों में हैं बच्चों के साथ, तो उन्हीं लोगों की लीज दी गई है। उसमें कुछ ऊँच नीच हो और अल्लाह के बदल से नहीं हुए, जिस अपना परफेक्ट लीज लेके सामने रखा गया है, उसी तहत ये टोकन दिए जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जैसा कि अभी तांडुर में ये काम पिछले 1 साल 3 महीने हुआ है GMK ट्रस्ट का कायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह जितने GMK ट्रस्ट इरादा करके ये ट्रस्ट को कायम किए थे, उससे 4 गुना और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम मुजीब खान साहब ने सामने लेकर आए हैं और उसको अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने कामयाब किया है अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम की दुआओं से। जिसमें आज जैसा कि अभी कैंप चल रहे हैं, समर कैंप्स ले लो आप, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ले लो, स्पोकिंग इंग्लिश ले लीजिए, तकरीबन इसी तरह से बहुत सारे प्रोग्राम हैं। सारे प्रोग्राम अल्लाह के फजल करम से कामयाब हो रहे हैं। कौम के लोगों को, बच्चों को और इसका फायदा हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले खान साहब ने ये तय किया, 2 से 4 दिन पहले, कि भाई जैसा कि हम तांडुर के अंदर ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इसी तरह से पूरे मंडल्स में भी, वहाँ पर भी गरीब और तकरीबन मुस्तहिक लोग रहते हैं, उनका भी ख्याल किया जाए और वहाँ मंडल सतह पे भी काम किया जाए GMK ट्रस्ट की तरफ से मिलकर। अल्लाह के फजल से खान साहब इरादा करें इंशाल्लाह। आप तमाम दुआ करिए जैसा कि आप लोगों को फायदा हो रहा है। तमाम ये मंडल्स में भी, वहाँ भी गुरबा है और यतीम असीर है, बेवाएँ हैं, बच्चे हैं, वहाँ पर भी टैलेंटेड बच्चियाँ हैं देहातों में भी, वहाँ पर वो लोग के कोई मदद नहीं पहुँचती। उसी तरीके से खान साहब के जहन में अल्लाह ने डाला है और इंशाल्लाह GMK ट्रस्ट वो मंडल सदा में भी काम करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहे तो। दूसरी और सारी की टीम को और आप लोगों के लिए भी जरूरी है आप लोग इनका साथ दें और आपके बच्चों का मुस्तकबिल के लिए मेहनत करें, आपके लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए तालीम का इंतजाम करें और आप लोग नमाज की पाबंदी करें और आप लोग अपना एक मुकाम बनाएं। इंशाअल्लाह आपका मुकाम की वजह से आपकी इज्जत बढ़ेगी। महले में हो तो तांडुर में हो तो जानिए आप एक महले में ऐसा रिकॉर्ड बनाइए कि यहाँ रहते काम हो जाता, मुझे खान के पास जाओ या महले की कोई औरत के पास जाओ, पहले जो काम हो जाता, बोल आप लोग दिलचस्पी से काम करेंगे तो महले का भी फायदा होगा, कौम का भी फायदा होगा और अपने हर कौम के औरतों को भी ले साथ में।
जो महले में जो दूसरे खवातीन भी है, जो गैर कौम के लोग हैं, उनको भी साथ लेके आप लोग अच्छी तरीके से काम करेंगे तो आपका भी नाम होगा और दीन का भी नाम होगा। दीन सबके लिए आया है, मुसलमानों के लिए नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके लिए काम किए हैं, सबके लिए काम करना आपको भी जरूरी है। मर्द हो या खवातीन हो, नमाजों की पाबंदी, कुरान की पाबंदी, अपने बच्चों को तालीम मस्जिद में तालीम दो या तो महल्ले में कोई तालीम का इंतजाम है तो वहाँ पे भी जाइए और आप लोग सब नमाज की पाबंदी कीजिए। कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कानून के लिए, सारी कौम के लिए रोज दुआ कीजिए। अब दुनिया की हालत बहुत खराब है, इतनी हालत खराब है, आइंदा ऐसी हालत है कि बोल नहीं सकते, वैसी हालत कर दी है हमारे हिंदुस्तान में। हम लोग 12 हम लोग ये जंग की वजह से, ये जंग भी रुक जाने के लिए भी आप लोग दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ये दुआ में बहुत बड़ी ताकत है। इंशाअल्लाह आपके शौरों के लिए, आप सबके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह सबके रोजी में खैर बरकत अता फरमाए और सारे हिंदुस्तान के लिए, सारी दुनिया के लिए अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए इनके सबके लिए। और आप सबके लिए अल्लाह ताला कबूल करे आपकी दुआ को। अल्लाह आपके हज का मौसम चल रहा, आप पूरे हज को गए हैं, उनके लिए भी दुआ कीजिए। कौम के लिए, सारी उम्मत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज। इसी तरह से मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। मोहतरम सामाईन, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ सामाईन और पर्दा नशीन माँ और बहनों, 1 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आज वो भी वादा पूरा होने जा रहा है जिसका वादा जनाब मुजीब खान साहब जीएम के ट्रस्ट के प्रेसिडेंट साहब ने किया था कि गवर्नमेंट के जो भी स्कीमें रहेंगी, ये जो ट्रस्ट रहेगा ये पुल का काम करेगा। गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें रहेंगी मुस्तहिक तक पहुंचाने के लिए हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और गवर्नमेंट ने जीएम के ट्रस्ट पर ट्रस्ट किया है कि आप ऐसे 200 मुस्तहिकीन की निशानदेही कीजिए जिनको हम 800 या 1000 घर देने वाले हैं। 200 घर जो दिए जाएंगे, या जीएम के ट्रस्ट जिसकी निशानदेही करेगा, जीएम की ट्रस्ट जिसकी निशानदेही करेगा, हम उसको वो घर अलॉट करेंगे। आज वो दिन आया है। आप ट्रस्ट को देखिए, 1-1.5 साल पहले जो जज्बे से जनाब मुजीब खान साहब ने इस ट्रस्ट का इनेकाद फरमाया था, इस मुख्तलिफ स्कीमें आप इसके तहत चला रहे हैं। लेडीज के लिए सेंटर कायम किए गए हैं, सिलाई मशीनें दिए गए हैं, 250 औरतों को सिलाई सेंटर में काम किया जा रहा है। उसके अलावा तकरीबन 24 से 25 लाख रुपए यतीम बच्चों को आप अपने जेब खर्च से दिए हैं। ताजुल के स्कूलों में जांच करा के आपने देखा कि कितने यतीम बच्चे हैं, तो 2 साल की फीस पिछले साल की और इस साल की सिर्फ अपने जेब से आप दिए हैं। उसके अलावा 100 स्टूडेंट हैं जो मैथ्स का ट्यूशन ले रहे हैं। उसके अलावा मेहंदी डिजाइनिंग है, औरतों को खुद कफील बनाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए आपने अपनी तरफ से मशीनें खरीदकर गरीब गुरबा में तकसीम की है। ट्रस्ट का जो महाना खर्चा है 3 लाख रुपए सिर्फ तनख्वाह दी जाती है जो आप अपने जेब से देते हैं। अपनी तरफ से जितना हो रहा है वो कौम की खिदमत कर रहे हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट से क्या फायदा पहुंचाया जा सकता है, ये ट्रस्ट के जरिए आए दिन देखते जा रहे हैं। लिहाजा मैं सभी हजरात से, खवातीन से, मर्द और हजरात से गुजारिश करता हूँ, आप ये ट्रस्ट का साथ दीजिए। अल्लाह ने हमारे दरमियान में एक ऐसे बर्द मुजाहिद को लाया है, एक ऐसी उभरती हुई शख्सियत है जो हर एक का ख्याल रखते हैं, ना हिंदू को देखते हैं ना मुसलमान को। बिला मजहब मसलक आप काम करते हैं और खिदमत खल्क करते रहते हैं। लिहाजा इनकी कदर कीजिए। और इनके अलावा जितने लोग ट्रस्ट में जुड़े हैं, वॉलंटरी ट्रस्ट में आके वो लोग कौम की खिदमत करना चाहते हैं और खिदमत कर रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ कहे, आखिरी एक शेर ये कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। ये जब तक हमारे दरमियान में है, हम इनकी कदर करेंगे, हमारा भी फायदा होगा, कौम का भी फायदा होगा। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें तुमको ढूंढेगी, न जाने तुम कहां होंगे। आपके आने से मजलिस में कमलाकर साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो टैग कराएं। कमलाकर साहब बड़े हैं, मालिक हैं जनाब श्रीनिवास रेड्डी साहब, तांडोर चेयरपर्सन मोहतरमा मीरा बावरी साहिबा, एएनसी चेयरमैन मोहसिन साहब, माजी एएनसी चेयरमैन बावरी साहब, वेलफेयर एसोसिएशन सदर अनावतर साहब, मेरे साथी काउंसलर जनाब राहुल साहब और मेरे सामने तशरीफ फरमा सदर नशीन मेरी माँ और बहनें और बुजुर्ग और नौजवान साथियों को मैं इन तमाम लोगों की तरफ से सलाम करता हूँ और तेलंगाना की तरफ से भी सलाम करता हूँ।
आप लोग जैसा कि अभी अभी सारे लोग आपके सामने सारी तफसील रखे हैं, किस तरह से हुकूमत अपनी कारकर्दगी आगे बढ़ा रही है और जनाब मुजीब खान साहब के बारे में तो सारी तफसील आप सुन चुके हैं। उनके बारे में और मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी कई तरक्की के काम जनाब मोइन मनोहर रेड्डी साहब तांडूर की आवाम के लिए सामने आकर करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से तांडूर की आवाम कम वक्त में जो जाना पहचाना भी चेहरा नहीं था जनाब मोइन मनोहर रेड्डी साहब का, सिर्फ एक 25 दिन या 1 महीने के अंदर तांडूर की आवाम ने उन पर भरोसा करके एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ उन्हें यहाँ का एमएलए चुना। और चुनने के बाद हम लोग भी ये सोचे कि तांडूर में टीआरएस पार्टी के बाद एक अच्छा कायद होना जरूरी है, क्योंकि एक अच्छी कायदाना सलाहियतों से ही माशरा तरक्की के रास्ते पर आता है और चलता है और लोगों की तरक्की होती है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 17 साल से एक भी गरीब का काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 17 साल पहले जो हमारे मरहूम चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब थे, उन्हीं के दौर में इंदिरा कॉलोनी, राजगुरुआ कॉलोनी दिया गया था। उसके बाद तेलंगाना रियासत अमल में आई और उसमें अमल में आने के बाद बड़े बड़े ख्वाब गरीबों को दिखाए गए। डबल बेडरूम दिया जाएगा, गरीबों की फलाह और बहबूद के लिए काम किया जाएगा, लेकिन कोई भी ख्वाब पूरा नहीं हुआ। आज आप देख रहे हैं, फिर तेलंगाना रियासत में यही कांग्रेस हुकूमत अमल में आने के बाद आप गरीबों का ख्वाब पूरा हो रहा है। यही जो डबल बेडरूम जो यहाँ पर बने हैं, यही जनाब मोइन मनोहर रेड्डी साहब को कही होते कि अभी ये बेडरूम देंगे तो हम बदनाम होंगे, लेकिन जनाब मोइन मनोहर रेड्डी साहब ने एक ही कहा, जिस तरह से मुझे अवाम ने यहाँ पर चुना है, जिस तरह से गरीब अवाम का ख्वाब है कि डबल बेडरूम जो उनके लिए ख्वाब है, जो उनके लिए रहने का जरिया है, जो गरीब है, जो यतीम है, यसीर है, लंगड़े लूले हैं, मैं तमाम ना मैं मजहब देखूंगा, ना मैं उनकी जात-पात देखूंगा, सिर्फ मैं ये देखूंगा कि वो गरीब है या नहीं। मैं उनका साथ दूंगा और उनके तक ये गरीब लोगों तक के घर पहुंचे, तो उसका जरिया बने जनाब मुजीब खान साहब। कई बार जनाब रऊफ साहब से, हमसे और कई दीगर जो तमाम के जो तांडूर के बड़े बुजुर्ग थे, उनसे मशवरा किया जनाब मुजीब खान साहब ने कि हम किस शख्स को साथ दें, कौन सी हुकूमत को साथ दें, और हुकूमत को साथ देने के बाद वो शख्स हमें क्या साथ देगा, हमारे माशरे को किस तरह से साथ देगा, हमारे मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को किस तरह साथ दिया जाएगा और हिंदुओं की तरक्की के लिए किस तरह साथ दिया जाएगा। आज जनाब मोइन मनोहर रेड्डी साहब ने उस ख्वाब को पूरा करते हुए, उन बातों को अमल करते हुए, आज जिस तरीके से तांडूर की आवाम ने उन पर भरोसा किया, उस ख्वाब को हकीकत में बदला है वो जनाब मोइन मनोहर रेड्डी साहब है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जो कायद अवाम के लिए काम करता है, अवाम उसका साथ दे, क्योंकि जो शख्स अपनी बुनियाद पर और अवाम की बुनियाद पर जो छूटकर आता है, उसी का साथ देना हमारा फर्ज है। आप देख रहे हैं, इससे पहले जनाब केसीआर साहब के दौरे हुकूमत में किसी को घर नहीं दिया गया। हम लोगों ने जनाब मोइन मनोहर रेड्डी साहब से कहा, कई बार कैंप ऑफिस में 7 गरीब लोग हैं जो कपूर बंडा के घर में रहते हैं। इससे पहले वाइब्रेट स्कीम लाई गई थी जनाब वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड में। अरे ये तो बहुत अच्छा है, अरे साहब आप असेंबली में इस बात को पेश करें। जनाब जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, वजीर आला है, उनके सामने ये बात रखें, क्योंकि गरीब लोग हैं, कई लोगों के पास जैसा कि गोला चेरू है, शाहीपुर है, इंदिरा नगर है, कपूर बंडी के घर है, जो आरसीसी बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो 3 लाख रुपए आने वाले 2 या 3 महीने में उनको भी दिया जाएगा। कपूर बंडा निकाल कर आरसीसी डाले, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं तरक्की का दौर है। और जो लोग यहाँ पे मेरी जो माँ और बहनें बैठे हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि तांडूर में जो इंदिरा पतंग पंप के नीचे जिसके पास भी 60 गज हो, 50 गज हो, 100 गज हो, उनके पास जो भी प्लाट है उसके ऊपर 5 लाख रुपए दिएंगे। उसकी कोई हद या लिमिट नहीं है। आप जितने भी लोग हैं उसकी दरखास्त लगाएं, हम सामने कहकर जनाब मोइन मनोहर रेड्डी साहब से कहकर उनको 5 लाख रुपए दिलाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जनाब जो मुजीब खान साहब अपने खानों पर जो ये जिम्मेदारी लेकर आगे चल रहे हैं, तांडूर में कई लोग करोड़पति हैं, जैसा कि इससे पहले कई लोग कह चुके हैं, मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ, लेकिन हमारा तालीमी मियार काफी कम है। दूसरों के अवध हमारा तालीमी मियार बहुत कम है।
मैं जनाब मुजीब खान साहब से यही कहूंगा कि आप भी मुझे उसमें शामिल करें, मुझसे जो भी होगा मैं भी अपना किरदार निभाने में उसमें हिस्सेदार बनूंगा। तमाम जो भी यहाँ पे लखपति है, करोड़पति है, एक ऐसा तालीमी इदारा कायम करे जो आने वाले दिनों में एक मिसाली बने। हमारे बच्चे पढ़कर आला तालीम हासिल करें, वो लोग भी कलेक्टर बने, एसपी बने, अच्छे अच्छे ओहदों पर फायज हो। हमारा यही ख्वाब है। अगर इस ख्वाब को मुख्तलिफाना तौर पर पूरा करने के लिए जो कोई भी आगे आएंगे, मुझसे जो भी होगा, जो भी बनेगा, मैं उससे में मेरा किरदार निभाते हुए अपने माँ और बहनों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं मजहब को नहीं देखूंगा। मैं उस तालीमी मियार को देखना चाहता हूँ ताड़ू में जो समाज को आगे लेकर जाए और माशरे को आगे लेकर जाए। मैं जनाब मुजीब खान साहब का फिर एक बार शुक्रगुजार हूँ, जो यहाँ पर बैठे हुए तमाम काउंसलर्स का भी शुक्रगुजार हूँ। जनाब तरफ से ये जो प्रोग्राम रखा गया है, एमएलए साहब की जुस्तजू से एएसजीएम के ट्रस्टी ज़ेरे निगरानी में ये गरीबों के लिए एक तोहफा, एक ख्वाब जो पूरा होने जा रहा है। आने वाले दिनों में 200 घर एएसजीएम के ट्रस्ट की तरफ से, एएसजीएम के ट्रस्ट के जरिए जो दिए जा रहे हैं, जिसमें बेवाएं हैं और जो हकदार हैं। काउंसिलर इलेक्शन में एमएलए साहब के साथ मुजीब खान साहब और बहुत से कैंडिडेट्स भी वार्ड में, जब एमएलए साहब के साथ हम भी थे, जब वार्ड वाइज फिरे तो देखे बहुत से गरीब बेघर अफराद हैं जो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। ट्रस्ट में जब भी मीटिंग हुई तो एमएलए साहब से मुजीब खान साहब की गुजारिश थी, ये जो सिलाई मशीन दे रहे हैं, जो मेहंदी डिजाइन के लिए और जो कुछ ट्रस्ट के जरिए हो रहा है, बिल्कुल गरीब अफराद यहाँ पर जो यतीमों के लिए फीस भरी जा रही है, उसके अलावा जो भी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बिलो पॉवर्टी के लोग यहाँ पर हैं। ऐसे मुस्तहिक अफराद को अगर आप डबल बेडरूम अगर अलाट करेंगे तो बिल्कुल मुस्तहिक लोगों तक ये पहुंचेंगे। लिहाजा एमएलए साहब ने वो टाइम वादा किया, ट्रस्ट के जरिए इन गरीबों तक ये स्कीम बराबर मैं दूंगा। आज वही बात पर वफा करने के लिए एमएलए साहब ने एएसजीएम के ट्रस्ट के जरिए ये 200 डबल बेडरूम का वादा वफा कर रहे हैं। काबिल मुबारकबाद है एमएलए साहब जिन्होंने अपना वादा वफा किया है। आज एएसजीएम के ट्रस्ट के जरिए मुस्तहिक लोग आज जो है, ये जो भी बहुत से लोग बहुत बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन साल 1.5 साल पहले आप लोग जो है साहब से फर्स्ट करता कि वो डाइस पर आप एप्लीकेशन लगाए थे, गवर्नमेंट के थ्रू इसकी इंक्वायरी हुई। ऑलरेडी इंक्वायरी होने के बाद A2 में जिसका नाम आया, गवर्नमेंट की तरफ से इंक्वायरी होने के बाद, जिसके पास बाइक नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास कोई जरिए माश नहीं है, एलिजिबल लोगों के लिए ही ये डबल बेडरूम का घर रखा गया। मुझे साथ रिकमेंड कर दिए, घर आ गया, ये कोई और रिकमेंड कर दिए, श्रीनिवास रेड्डी साहब रिकमेंड करें, चेयरमैन मैडम रिकमेंड करें, रजा साहब रिकमेंड करें, मुस्लिम वेलफेयर वाले रिकमेंड करें। घर रहने वाला नहीं है, जो मुस्तहिक है, जो कलेक्ट्रेट के थ्रू, जो एमआरओ के थ्रू घर तक आके जो भी इंक्वायरी, उसी के बाद ही एएसजीएम के ट्रस्ट के जरिए जो भी लोग मुस्तहिक हैं उन्हीं को जो है कराएगा इंशाअल्लाह। बहुत सी कोशिश है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एमएलए साहब के जरिए भी। आने वाले दिनों में 500 लोग यहाँ पे एएसजीएम के ट्रस्ट में जो घर जो है गरीबों के लिए आना है, लेकिन 200 घर दिए जा रहे हैं और 300 लोग बाकी हैं। आने वाले दिनों में इंदिरा माइंडो आने वाले हैं, 70 गज जमीन और उसके ऊपर 500 जो है 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिए जाने वाले हैं। अगर ये 300 लोग जो छूट रहे हैं तो उनके लिए भी हम बराबर एमएलए साहब के जरिए उन 300 के लिए भी हम बराबर कोशिश करके घर दिलाने के लिए हम बराबर बात करेंगे। आज मुजीब खान साहब की ये कोशिश है कि माइनॉरिटीज के लिए कानून में कुछ करें। कानून की मिट्टी यहाँ की मिट्टी से मैं भर रहा हूँ, कानून की मिट्टी के लिए मैं कुछ करूँ, गरीबों के लिए कुछ करूँ।
जात पात मजहब से हटकर गांव के लिए, तांडूर के लिए, तांडूर में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और कुछ चाहिए, चाहे म्युनिसिपैलिटी में हो चाहे गांव के लिए हो, बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक जो भी अच्छा काम है उन्होंने जब भी आवाज दिए हम उनके साथ खड़े होंगे। और हमारे एमएलए साहब जो गवर्नमेंट की स्कीम आ रहे हैं आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर, ये महीने या फिर जून में रेवंत रेड्डी साहब तांडूर आ रहे हैं, तकरीबन 1000 करोड़ से बहुत से बड़े काम इंटीग्रेटेड 200 करोड़ से गरीबों के लिए यहाँ स्कूल आने जा रहा है। दौलतपुर में वो गरीब बच्चे 200 करोड़ से जो कॉर्पोरेट तालीम दी जाती है वो तालीम हमारे बच्चों तक पहुंचने के लिए 75 स्कूल तेलंगाना में आ रहे हैं। एक स्कूल जो है हमारे तांडूर के लिए भी आ रहा है। तो हमारे एमएलए साहब की कोशिश है कि हमारे बच्चे भी कॉर्पोरेट तालीम हासिल करेंगे। और एक बात, आज एटीसी सेंटर खुला हैदराबाद रोड पे, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। पिछले साल वहाँ पे तालीम स्टार्ट भी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर, उस सेंटर में तकरीबन 125 लोगों ने वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल की। आज वो 125 बच्चे बराबर जो है यहाँ फैक्ट्रीज में हो चाहे हैदराबाद के इंस्टीट्यूशन पे हो, आज उन 125 बच्चों के लिए जॉब का इंतजाम किया गया। ये हमारी कोशिश है, कांग्रेस पार्टी की कोशिश है। हमारे बीच श्रीनिवास रेड्डी साहब बैठे हैं, चेयरमैन मैडम बैठे हुए हैं, हमारे वाइस चेयरमैन बैठे हुए हैं, काउंसलर बैठे हुए हैं। म्युनिसिपैलिटी अभी जो है नया इलेक्शन हुआ, 2 महीने हुआ, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं टेंडर्स कराना, तांडूर को डेवलप करना। म्युनिसिपैलिटी नहीं थी, हम गए 4-5 साल लेके लड़ाई में जो है 5 साल गुजर गए। रोड का इंतजाम किया जाए, मूरियों का इंतजाम किया जाए, अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज सिस्टम लेके आया जाए। तो लिहाजा हम हर तरीके से, हमारे एमएलए साहब, हमारी गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है गरीब जो इलाके हैं आने वाले दिनों में स्लम्स को जो है ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस देके हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की दुआ और आप लोगों का साथ अगर रहा तो एमएलए साहब के साथ, एक गवर्नमेंट के साथ, तो हम आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा फंड ले जाके तांडूर की तरक्की के लिए हम बराबर कोशिश करेंगे। बोलते हुए हम आने वाले दिनों में बराबर जो गरीबों के लिए जो भी फंड्स आएंगे एजीएम के ट्रस्ट को साथ लेकर तांडूर की तरक्की के लिए आप लोगों के जो हक है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए बराबर हम साथ देते रहेंगे। बोलते हुए जो भी स्टेज पर जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों का, म्युनिसिपल चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का, काउंसलर्स का, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का, मेरी माँ बहनों का और तमाम जिम्मेदारों का और प्रेस और प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद। मैं रोड साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इसके बाद जनाब नईम महफूज साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो 2 मिनट के लिए आपसे मुखातिब हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार हैदराबाद से जीएमके ट्रस्ट की तरफ से हमारे जनाब मुजीब खान साहब, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गरीब आवाम के लिए क्या क्या सहूलतें होना है। मुजीब खान साहब कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुजीब खान के सेहत में और अल्लाह ताला को नजर से बचाए। और आज आए हुए मेहमान हैं खुसूसी हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब और उसी तरह म्युनिसिपल चेयरपर्सन नीरजा बावरेड्डी मैडम जी और वाइस चेयरमैन अब्दुल रजाक साहब और तमाम काउंसलर्स, तमाम तांडूर के जिम्मेदार हैं और मेरे पर्दा नशीन, मेरे माँ बहनों और मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप तमाम को फिर से दफा मैं सलाम अर्ज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तांडूर एमएलए जनाब मनोहर रेड्डी साहब ने जो म्युनिसिपल इलेक्शन में जो गरीब आवाम को जो वादा किए थे, म्युनिसिपल इलेक्शन में हमारे म्युनिसिपल काउंसिलर जीतेंगे और म्युनिसिपल चेयरमैन बैठेंगे, तो मैं इंशाअल्लाह मुजीब खान साहब को जो वादा किए थे 200 घर मैंने आपके थ्रू गरीब आवाम जो है, जो गरीब है, जो बेवा है, वो लोगों को देते हुए
एमएलए साहब ने वादा किया था, क्योंकि ट्रस्ट के जरिए इसलिए दिया जा रहा है कि एमएलए साहब सोचे कि ट्रस्ट के जरिए दिए तो सही इंक्वायरी होती, सही लोगों तक पहुंचता है। बोलकर एमएलए साहब मुझे खान साहब को जिम्मेदारी देकर आज आप लोगों को यहाँ पर आज ड्राफ्ट सिस्टम रखा गया है। मैं उन तमाम लोगों से मैं अदब गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है, कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो आवाम को क्या चाहिए, रहने के लिए घर होना है, खाने के लिए राशन होने का है, पीने के लिए पानी होने का है और कुछ गुजारा चलने के लिए कुछ नौकरियां होना है, वो करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आप लोग गौर करिए, जो मनोहर रेड्डी साहब ने जब से एमएलए बने, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तांडूर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग देहातों में भी जिसको घर नहीं थे 5 लाख रुपए इंदिरा पत्थर बोल के लाकर वो लोगों को 5 लाख रुपए तकरीबन मिले। में आप जाकर देखिए, हर लोग घर बना लेके हमारे सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब ने जो वादा किए थे, जो मनोहर रेड्डी साहब ने जो वादा किए थे, वो वादा मुकम्मल करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुलिस्तान में आप लोग देखे हैं तो आज तक टीआरएस गवर्नमेंट ने एक इंच जमीन भी नहीं दी, वही लोगों को धोखा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मनोहर रेड्डी साहब ने जीतने के बाद उन्होंने जो वादा किए, इलेक्शन में जो वादा किए, अल्हम्दुलिल्लाह आज 200 घर मुजीब खान साहब के जरिए से आज 200 घर दिया जा रहा है। मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और जिसको नहीं आया आप लोग मत सोचिए क्यों नहीं आया, ड्रामे नहीं आया, कभी सोचने की जरूरत नहीं है। एमएलए साहब ने हम गोयानी श्रीनिवास रेड्डी साहब चेयरमैन साहब को ये बोले हैं और हम सबको ये बात बोले हैं, हमारे रऊफ साहब भी सीनियर लीडर है, उन तमाम के सामने बोले जिसको घर नहीं आया, जो अनकम्प्लीटेड, जो डबल बेडरूम है, जो बेसमेंट बनाया है, जिसको सिलाना डाले हैं, हम उनको भी जो इंदिरा पत्थर में 5 लाख रुपए देकर मुकम्मल करने वाले हैं, वो जो मुकम्मल करने का है वो आप लोगों के नाम पे पट्टा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो पट्टा सर्टिफिकेट के जरिए आप लोगों को जो बनाने के लिए कितने लाख की जरूरत है, 2 लाख होना, 3 लाख होना, वो स्टूडेंट जाकर आप लोगों तक वो घर में इंशाल्लाह जल्द से जल्द देने वाले हैं। मनोहर रेड्डी साहब, मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग देखिए राशन कार्ड के लिए आप लोग घूमते थे, कहीं राशन कार्ड नहीं बनाया जाता था, आज कांग्रेस पार्टी आने के बाद राशन कार्ड दिया जा रहा है, गरीब को 2200 मसूरी चावल दिया जा रहा है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो कांग्रेस पार्टी गरीबों को हर स्कीम पहुंचाती है, आप उनके हाथ में दुआ भी कीजिए और उसी तरह हमारे मनोहर रेड्डी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। और मैं आप तमाम से मैं अदब गुजारिश करता हूँ कि लोग कई बातें ऐसे बातें कर रहे हैं, मुजीब खान साहब को क्यों किया जा रहा है? भाई अल्लाह का बंदा, ये ऐसे गाना किया जा रहा है, जो गरीब है, जो टेलरिंग सेंटर नहीं सीख सकते तो उनको टेलरिंग सेंटर सिखाया जा रहा है, जो गरीब है उनको मेहंदी डिजाइनिंग का काम नहीं कर सकते तो उनको ट्रेनिंग देने वाले मुजीब खान साहब है, बहुत अच्छे गाना कर रहे। जो देवा लोग है, जो देवों के लिए वो लोग उनके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते तो मुजीब खान साहब की तरह उन्होंने अपने खुद के पैसे लगाकर अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चों को एजुकेशन दे रहे। मैं मुजीब खान साहब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग भी देखिए, लोग बहुत कुछ बातें बोलते रहते, आप उस बातों में मत आइए। और मैं हमारे चेयरमैन मैडम से भी अदब गुजारिश करता हूँ, जो लोग गरीब काउंसलर्स को भी धरा दिया जा रहा है, वो काउंसलर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह जो गरीब है वही लोगों को धरा दिया जाएगा। इंक्वायरी कलेक्टर साहब से इंक्वायरी होंगी, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से और एमआरओ साहब से, वो लोग इंक्वायरी कर जो गरीब है, जो बेवा है, जिसको जाति घर नहीं है, वही लोगों को दिया जा रहा है। अब मुजीब खान साहब भी वही इंक्वायरी करके उसी तरह लोगों को दिया जा रहा है। और मुझे ये मौका दिए, मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा प्रोग्राम है पूरे तेलंगाना में एक मैसेज आने वाला है इंशाल्लाह। ये जितने सीनियर यहाँ पे रऊफ भाई, अकूब भाई, रजा भाई, जितने भी बातें यहाँ पे बताए हैं ये सबके लिए है।
200 मतलब ये मत समझिए सिर्फ 200 लोगों का फायदा हुआ, बल्कि 200 लोगों तेलंगाना के आवाम का फायदा हुआ समझिए, क्योंकि हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जब से वो सीट पे बैठे, जब से सीएम बने, तेलंगाना के खास करके पूरी आवाम के बारे में, उसके अंदर स्पेशल माइनॉरिटीज के बारे में भी ज्यादा उनकी फिक्रमंद है, क्योंकि हमारे पी श्रीनिवास रेड्डी साहब जो हाउसिंग मिनिस्टर है उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे मनोहर रेड्डी साहब जब एमएलए यहाँ पर बने, जब सब यहाँ पे आए, जब काम शुरू करे तो कई लोग बोले मौका भी नहीं है, ये लोग क्या कानून का काम करेंगे, लोगों का क्या भला करेंगे, क्योंकि हमारे को यकीन था उनका बैकग्राउंड हम सुने थे। हैदराबाद के अंदर जो है सीएम साहब के बड़े भाई पेपर रेड्डी साहब हमारे को बुला के, मेरे को रोबो को बुला के उनका पूरा बैकग्राउंड बताए, उन्होंने क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन होने की हैसियत से उनको कोई तांडुल से कमाने की आस नहीं है, तांडुल को डेवलपमेंट करना उनका मकसद था। हमारे मनोहर रेड्डी साहब ये हमारे को कमिटमेंट करे, मैं तांडुल में जब जीतूंगा, मेरे भाई श्रीनिवास रेड्डी जो है हमारे से तांडुल के अंदर बिजनेस करे, हर कोई उनको पहचानते। आज मनोहर रेड्डी साहब कभी तांडुल के अंदर मौजूद नहीं रहे, तो हमारे जो है श्रीनिवास रेड्डी साहब को काम उनकी जो है कमी को फुलफिल करते। हमेशा आधी रात को जो हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब यहाँ पे मौजूद है, कोई भी काम आपको जरूरत पड़ेगी आप उनको फोन करिए, 24 घंटे के अंदर अवेलेबल है, आवाम की खिदमत करने के वास्ते रेडी है। ये 200 घर जो है इलेक्शन के टाइम, चेयरमैन इलेक्शन के टाइम जो है मनोहर रेड्डी साहब 200 घर की जिम्मेदारी एएसजीएम के चार्ज नोटिस देने की वजह क्या है, एएसजीएम के चार्ज नोटिस, बल्कि ये पूरे तांडुल के जितने माइनॉरिटी है, जितने मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन है, जितने जमाते हैं, सब हम एक ही है, क्योंकि ये बात ये समझ में हम ग्राउंड के अंदर गरीब गुरबा के अंदर जाके उनके हालात मालूम करके, क्योंकि हमारे ट्रस्ट के अंदर इतने नौजवान जो है 1000 से 2000 जो वॉलंटियर्स हमारे पास है, डोर टू डोर जाके हर एक की जो है तहकीक करके काम कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि जो कोई भी हमारे पास एप्लीकेशन आया, कोई भी आके अपने उनकी मजबूरी हमारे सामने रखने वाले इमीडिएटली फैसला नहीं लेते, क्योंकि हमारे वॉलंटियर्स उनके घरों तक जाते हकीकत, क्योंकि उनके प्रॉब्लम है नहीं है मालूम कर उनकी जो है उनकी मजबूरी को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसके ऊपर गौर फिक्र कर हम उनकी मदद करते हैं। आप ये सोचने वाली बात है, खुद एक हदीस का एक मफहूम है, खुद पाक सलाम का इरशाद है, तुम सिला रहमी करो, अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र में बरकत देगा और माल में बरकत देगा। दुनिया के अंदर इंसान क्या चाहता, हर इंसान जिंदगी के अंदर 2 चीजें उसका मकसद था, उसके अंदर ये रहता हूँ भाई मेरी लंबी उम्र हो, सेहतमंद होना, लंबी उम्र जीना, हर इंसान की आरज़ू रहती है मैं लंबी उम्र दूंगा और सेहतमंद होऊंगा, और दूसरी आरज़ू क्या रहती, मैं माल वाला बनूंगा, पैसा मेरे पास आना, मैं खुशहाल जिंदगी, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, मैं अच्छे घर में रहूंगा। ये जो 2 चीजें हर इंसान चाहता, तो उसके वास्ते आसान तरीका हुजूर पाक सल्लल्लाहु क्या बताते, तुम सिला रहमी करो, तुम लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, तुम लोगों की मदद करो, बीमार की इयादत करो, परेशान की मदद करो। आज जो मनोहर रेड्डी साहब कितनी भी तारीफ करे तो कम है, आज वो ज्यादातर जो है गरीब गुरबा की मदद करे, तो ये सिला रहमी है। ये रिजल्ट इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट एमएलए भी लोग बनेंगे, क्योंकि उनकी पूरी फिक्र ये है तांडुल की आवाम को जो है किस तरीके से मैं फाइनेंशियली होंगे, एजुकेशन के होंगे, हेल्थ में होंगे, मैं किस तरीके से इनकी हेल्प करूँ, किस तरह से तांडुल को मजबूत करूँ, उनकी फिक्र ऐसी देखकर हम तमाम लोग उनके साथ जुड़े। राउत भाई को कई बार ऑफर आए थे इलेक्शन के टाइम टीआरएस की तरफ से, राउत भाई ये बोले भाई काफी वक्त मैं जो टीआरएस में गुजारा, तांडुल का भला नहीं हुआ, एक बार ये जो है ये शख्स जो पहली बार तांडुल में आ रहे, एक बार इनको खान साहब हम सपोर्ट करके देखेंगे, इंशाल्लाह तांडुल के वास्ते में कुछ करेंगे तो हमारा भी सियासत में रहने का मकसद पूरा होगा। ये मकसद लेके राउत भाई खड़े जुड़े, जब वो टाइम पे कई लोग जो है डर के उधर चले गए, कई लोग जो है भाई नया शख्स है क्या शख्स होता नहीं मालूम, इस तरीके से जो है कोई सपोर्ट नहीं करे, मगर राउत भाई उस टाइम नहीं मतलब साहब ऐसे कई सीनियर लीडर है, अहद भाई कई लोग ऐसे हैं खुल के काम करे। आज खुल के काम करने का रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं, आज ये 200 घर का जो है खुल के कई लोग बोल रहे भाई 200 घर इस तरीके से एएसजीएम के चार्ट तो तुम दे रहे, ऐसा क्यों दे रहे, तो बात ये समझने वाली है। मनोहर रेड्डी साहब उस दिन आके ट्रस्ट में देखे खवातीन ज्यादा हमारे ट्रस्ट में जुड़े हुए, हजारों की तादाद में यहाँ खवातीन जमा थे, उस दिन देख के बोले वाकई जो है ट्रस्ट जो है गुरबा के ऊपर अच्छा काम कर रहा, लिहाजा जो मैं ट्रस्ट को जिम्मेदार बना के 200 कर दूंगा तो मुस्तहिक तक पहुंचेगा, ये सोच के उस दिन ऐलान करे। तो इसका मतलब ये हुआ मनोहर ये एएसजीएम की सर्टिफिकेट आपको घर नहीं दे रहा, मनोहर रेड्डी साहब अपने पर्सनल आप लोगों को दे रहे, क्योंकि हर वार्ड को जो है 12-12 घर जो है काउंसलरों को दिए, 200 घर मनोहर रेड्डी साहब अपनी तरफ से ट्रस्ट को जरिया बना के आप लोगों को डायरेक्ट मनोहर रेड्डी साहब दे रही है। आप मनोहर रेड्डी साहब के हाथ में दुआ करिए,
क्योंकि इतना जो कौम के बारे में, गरीब गुरबा के बारे में इतना सोचे हुए, तो लास्ट टाइम भी जो इलेक्शन के टाइम अपन एनटीआर कॉलोनी भी गए, वहाँ राजू कॉलोनी भी गए, वहाँ ठहर के साथ ये बात बताते थे तुम्हारा क्या डेवलपमेंट में करना है मैं करता हूँ। आप सोच के देखिए हमारे कौम कितना सहयोगी है भाई। जो पार्टी रूलिंग में है वो काम करेंगी, या रूलिंग में नहीं है वो काम करेंगी। हम इतना सोचने का भी हमारे पास सेंस नहीं है, क्योंकि वजह क्या है, हमारे पास तालीम की कमी है, एजुकेशन की कमी है। आज हम पूरे जितने जमातें तांडुल के अंदर काम कर रही, जैसा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन में और भी जमातें हो, जिनके चैरिटेबल ट्रस्ट और जैसा जितने पार्टी के जितने सीनियर लीडर है, सबकी ये फिक्र है तांडुल के अंदर अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना है। भले कोई भी जात का होंगे, कोई भी कम्युनिटी का होंगे, सबका हमारा मकसद ये है। यहाँ पे मस्जिद में बैठने वालों का सबका मकसद ये है तांडुल को किस तरीके से हम डेवलपमेंट करेंगे। सब में पहला काम करेंगे एजुकेशन को जिस तरीके से तांडुल में लाना है। आप सब मिलकर जो है हमारे मनोहर साहब का साथ देना है, हमारे चेयरमैन साहब का साथ देना है। जितने वार्डों के अंदर जो काउंसलर कांग्रेस से जीत के आए हैं, तमाम लोगों का सपोर्ट करना है। जिस तरीके से आपको बुला के आपको घर हवाले कर रहे, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता पार्टी को भी हर दम आखिरी सांस तक जब भी उन्हें बुलाएंगे लब्बैक बोल के उठ के आप लोगों को आने का है, क्योंकि भाई उनका काम है, उनका फर्ज उन्होंने निभा रहे। अब हमारा काम होगा, हम जब उनसे जब कोई चीज लिए हमारे अच्छे या बुरे के बारे में जब लोग सोच रहे, तो हम भी ताकत के बल पे ताकत उनको सब मिलकर सपोर्ट करेंगे, तो एक ताकत बन के उभरेंगे, तो इंशाल्लाह हर काम बनेगा हमारा। तो बहरहाल मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज का दिन एक मैसेज हमारे को जो है, हम छुट्टी भी देना नहीं। कई लोग बोले भाई हम जो प्रोग्राम रखे तो गड़बड़ होंगी, गड़बड़ क्यों होती भाई, क्या गलत काम कर रहे क्या हम लोग? क्योंकि गवर्नमेंट जो है गरीब और गुरबा को देने की जिम्मेदारी दी। आज हम अपना कीमती वक्त निकाल के कारोबार छोड़ के आप लोगों के बीच में ठहरने का मतलब क्या है, मुस्तैद को पहुंचाना है। ये मुस्तैद को पहुंचाने का काम हुजूर पाक सल्लल्लाहु उम्मत को सिखाए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का उठा के देखिए, अमीरुल मोमिनीन थे। अमीरुल मोमिनीन का मतलब ये है उस टाइम के बादशाह थे, बादशाह रहने के बावजूद भी उन्होंने जो रात के वक्त निकल के घर घर जाके लोगों की तहकीक करके उनकी मदद करते थे। अपने जो है साथ वालों के ऊपर भरोसा नहीं, खुद निकल कर जो है जाके तहकीक करके देते थे। आज तहकीक करके काम दे रही, तो सहाबा की सुन्नत पे एक रस अमल कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से जो है आज जितने यहाँ पे काउंसलर बैठे हुए हैं, सबकी यही फिक्र है हमारे तांडुल के आवाम का कैसा फायदा होना, तांडुल का डेवलपमेंट कैसा होना। तो हमारे एमएलए साहब की भी वही फिक्र है। हजारों अभी रोबे बोले 1000 करोड़ जो है खासकर तांडुल के वास्ते लेके आ रहे, और 2 महीने के बाद सीएम का जो प्रोग्राम रखते, शाह कहीं भी जो तांडुल के अंदर विकाराबाद है, कोड़ंगल है, परगी है, ये कोई भी एरिया में जो है सीएम साहब का प्रोग्राम रख सकते थे, मगर तांडुल में रखना, मनोहर साहब का वेट का अंदाजा लगाइए सीएम साहब की कितने करीब है। तो तांडुल को सीएम साहब को बुलाने का मकसद ये है, तांडुल की हालत सीएम साहब जब देखेंगे तो इंशाल्लाह तांडुल खुद का खुद बदल देगा। क्योंकि तांडुल के सामने कई विलेजेस बदल गए, कई एरिया बदल गए, विकाराबाद बदल गया, परगी बदल गया, कोड़ंगल बदल गया, तांडुल जैसे का वैसी है। तो मनोहर साहब का इरादा ये है, कई सालों से जो है तांडुल जैसे का वैसा था। मेरे पीरियड में तांडुल जो है अच्छा नया तांडुल, मतलब इसका ऐसा डेवलपमेंट लेके आना चाह रहे, आने वाली नस्ल उनको याद करना है। तो इंशाल्लाह उन्हें ये काम करना है, तो हम सब मिलकर उनको साथ देना है। आज जो है प्रोग्राम का इससे पहले भी बताया 200 जो है घर मिलेंगे, जो बाकी लोगों को नहीं मिलेंगे, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह सुमान साहब हम पूरे यहाँ पर मौजूद है। श्रीनिवास रेड्डी साहब एमएलए साहब के भाई है, मनोहर साहब नहीं है, मगर भाई साहब की कमी पूरी कर रहे हैं, वो खुद आपको इंशाल्लाह बैठ के आपको वाला कमिटमेंट करेंगे। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में जिसको नहीं मिले उनको भी इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे। आइए हम ड्राग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी को दे दिए तो ये समझते लोग अरे भाई सूरत दे के दिए, पैसे खा के दिए, पार्टी के जो है कार्यकर्ता भी बदनाम होते, पार्टी के लीडर भी बदनाम होते, प्रेस वाले भी बदनाम हो जाते। हम तो ये सोचे भाई ऊपर वाला जिसके नसीब में रखा उसको मिलेगा। जब हम आपके सामने ड्रा करेंगे तो ये समझे ऊपर वाला उसके नसीब में रखा, क्योंकि हमारे हाथ में है ना किसी और के हाथ में है। हमारा काम था यहाँ तक आना, आगे आपकी नसीब अल्लाह की मर्जी, वो सोच के हमें ड्रा सिस्टम रखे। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह बराबर थोड़ी देर के बाद रहूंगा हमारे श्रीनिवास साहब के बयान के बाद, मैडम के बात के बाद इंशाल्लाह थोड़ी देर बैठिए रहूंगा। ड्रा होने के बाद जिसको भी मिलेगा हम सब खुश होना है। एक हदीस को ध्यान में रख के चलिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन की शान वो है जो हमारे वास्ते पसंद करते हैं, सामने वाले के वास्ते पसंद करना है। जब कोई या किसी के हक में उड़ गया तब खुशी से उसके हक में दुआ देना है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। मायूसी भी कुफ्र है। अल्लाह की जात पे यकीन रखने वाले कभी मायूस न होते, याद रखिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो नसीब में रखा वो बराबर मिलता।
आप ये यकीन रख के आए हुए यहाँ पे हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब देंगे, एएसजीएम के चैरिटेबल के ट्रस्ट के जिम्मेदार हजरत देंगे या वेलफेयर के जिम्मेदार देंगे, तांडुल के जिम्मेदार जो बड़े लोग हम लोग देंगे। ऐसी नीयत रख के आना शिर्क है, क्योंकि एक जाहिर शिर्क है, एक बातिनी शिर्क है। यकीन अल्लाह के ऊपर रखेंगे तो जो भी फैसला हो रहा है उसके ऊपर खुश होते, सबके हाथ में दुआ दीजिए, ये काम को कामयाब करिए इंशाल्लाह। बस मेरी बात जो है इस बात के हृदय में बात अपनी खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुबारक मुबारक। यहाँ पर मैडम ओपन के मैं नाम बोलता इधर इधर लाइए मैडम का नाम उठाए। रजाक साहब, समीना बेगम साहिबा, वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5 के समीना बेगम का यहाँ पर डबल बेडरूम का लकी ड्रा में बेगम साहिबा, जैबुन्निसा बेगम, वार्ड नंबर 25। 10-15 मिनट सब्र कीजिए क्योंकि काम जल्द से जल्द हो रहा है। यहाँ पर जैबुन्निसा बेगम, वार्ड नंबर 25। वार्ड नंबर 25 के जैबुन्निसा का नाम आया है। यहाँ पर हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। वार्ड नंबर 25 जैबुन्निसा। मैं हमारे बाकी के काउंसलरों से ख्वाहिश करते हैं कि वो बैठे रहें। आप लोग यहाँ पर बैठे रहे, आपका सबका यहाँ पर नाम बताया जाएगा, उन्हीं के नाम से यहाँ पर टोकन सिस्टम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको बहुत बहुत मुबारक। आसिया बानो साहिबा, वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 के आसिया बानो को यहाँ पर डबल बेडरूम का यहाँ पर लकी ड्रा में नाम आया है। हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। आसिया बानो, आप वहीं पर बैठे रहें। आप जिन जिन के भी नाम बताया जा रहा है यहाँ पर लिखा जा रहा है उन लोगों को, फिर आपके आधार कार्ड लेकर 3 बजे आप लोगों के सामने बताया जाएगा। मोहतरमा सलमा बेगम, वार्ड नंबर 5। सलमा, वार्ड नंबर 5 के वार्ड नंबर 4 शेख शायदा। हसीना बेगम। वार्ड नंबर 10 महमदी। वार्ड नंबर 10। कंग्रेचुलेशन बेगम, वार्ड नंबर 5 के, अल्लाह इनको मुबारक करे, इनकी रोजी में खैर अता फरमाए। शबाना बेगम, वार्ड नंबर 35। वार्ड नंबर 35 के शबाना बेगम, बहुत बहुत मुबारक हो। फातिमा बेगम, वार्ड नंबर 4 के, उन्हें यहाँ पर डबल पे जो भी हजरात यहाँ पर ड्राफ्ट उठाए हैं वो मौका दे सबको और अपने अपने चेयर्स पर जाकर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर वार्ड नंबर 5 अस्मा खातून। वार्ड नंबर 5 अस्मा खातून। वार्ड नंबर 5 अस्मा खातून लिखिए भाई। शेख महमूदा भी, वार्ड नंबर 4। कौन है भाई? सामने आइए नूर भाई आओ। अहमदी बेगम, वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर 4 अहमदी बेगम। तैयबा बेगम, वार्ड नंबर 14। मदीना बेगम, वार्ड नंबर 3। फरीदा बेगम, वार्ड नंबर 32। फरीदा बेगम, वार्ड नंबर 32। आप लोग यहाँ पर क्लैप्स मारिए क्योंकि यहाँ पर लकी ड्रा का रन रखा गया है। आप लोग की तरह यहाँ साथ रहिए। नसरीन बेगम, नसरीन खातून, वार्ड नंबर 3। जरा हाथ में जिसका भी आ रहा नाम उन्हें हाथ उठाओ। नसरीन खातून। परवीन बेगम, वार्ड नंबर 30। शाहीन बेगम,
वार्ड नंबर 21। अस्सलामुअलैकुम। परवीन बेगम वार्ड नंबर 7, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। जमीला बेगम वार्ड नंबर 5, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। नूर भाई आओ वार्ड नंबर 35 जमीला बेगम। जवीना बेगम वार्ड नंबर 35। वार्ड नंबर 10 सलमा बेगम वार्ड नंबर 21। फरहत सुल्ताना वार्ड नंबर 11। फरहत सुल्ताना वार्ड नंबर 11 से वार्ड नंबर 11। नसीम बेगम वार्ड नंबर 27। नसीम बेगम वार्ड नंबर 27। वार्ड नंबर 11 के काउंसलर बटना से मैं गुजारिश करता हूं कि वो लकी ड्रा उठाएं। यहाँ पर वार्ड नंबर 20 शबाना बेगम। शबाना बेगम वार्ड नंबर 20 शबाना बेगम। ओके ओके राइट। और जिन जिन के भी नाम नंबर 1 लिए जा रहे हैं अर्शिया बानो। वार्ड नंबर 1 अर्शिया बानो। अर्शिया बानो वार्ड नंबर 8। नजीमा बेगम वार्ड नंबर 18। नजीमा बेगम वार्ड नंबर 18। कनीस फातिमा वार्ड नंबर 14। कनीस फातिमा वार्ड नंबर 14। तस्लीम वार्ड नंबर 18। रिजवाना बेगम वार्ड नंबर 2। जो हमारे और जितने वार्ड नंबर 22। जरीना वार्ड नंबर 22। ओके राइट राइट मुबारक। शाहीन बेगम वार्ड नंबर 14। वार्ड नंबर 14 शाहीन बेगम। शाहीन बेगम वार्ड नंबर 14। मुबारक। वार्ड नंबर 28। वार्ड नंबर 28 सुल्ताना। नाजिया बेगम वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7 नाजिया बेगम बहुत बहुत। रेशमा वार्ड नंबर 35। रेशमा वार्ड नंबर 35। वार्ड नंबर वार्ड नंबर 13। वार्ड नंबर 3। सालेहा बेगम वार्ड नंबर 3। सुल्ताना बेगम वार्ड नंबर 22। सुल्ताना बेगम वार्ड नंबर 22। जरीना बेगम वार्ड नंबर 8। मुबारक आप बहुत बहुत। शमशाद बेगम वार्ड नंबर 32। शमशाद बेगम वार्ड नंबर 32 32। आफरीन बेगम वार्ड नंबर 22। आफरीन बेगम वार्ड नंबर 22 मुबारक। रेशमा सुल्ताना वार्ड नंबर 16। रेशमा सुल्ताना वार्ड नंबर 16। रेशमा सुल्ताना वार्ड नंबर 16। मुमताज बेगम वार्ड नंबर 3। मुमताज बेगम वार्ड नंबर 3। फकीरुन्निसा वार्ड नंबर 22। फकीरुन्निसा। यास्मीन बेगम 25 वार्ड। यास्मीन बेगम 25 वार्ड। वार्ड नंबर 25 यास्मीन बेगम। शाहीन बेगम वार्ड नंबर 11। शाहीन बेगम वार्ड नंबर 11। शाहीन बेगम। शमशाद बेगम वार्ड नंबर 8। शमशाद बेगम वार्ड नंबर 8। राबिया बेगम वार्ड नंबर 35। राबिया बेगम वार्ड नंबर 35। आबिद भाई से गुजारिश करता हूँ जो आबिद भाई
यहाँ पर आकर ड्रा खाले हाफिज भाई ड्रा निकाले। रजिया बेगम वार्ड नंबर 30। इकबाल भाई और सदर साहब। महमूदा वार्ड नंबर 13। महमूदा वार्ड नंबर 13। अहमद बेगम वार्ड नंबर 21। हशमत बेगम वार्ड नंबर 21। हशमत बेगम साहिबा। रुबीना परवीन वार्ड नंबर 8। सबिया बेगम वार्ड नंबर 30। सबिया 6 और 25 है, तो ये तमाम वार्ड को जमा करके जो है ना एक इंदिरा नगर क्लस्टर बनाया गया है, तो इसके अंदर से इंशाल्लाह हम फिर ड्राफ्ट उठाएंगे। मैं जिन चीफ गेस्ट का भी नाम दूंगा वो यहाँ पर आएंगे और 2-2 चिट्ठी उठाते जाएंगे। बाकी के तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंदिरा नगर के 7 वार्डों का मिला के एक जगह करें हम लोग। उसके अंदर जो है टोटल 116 का नाम आया हुआ है, उसमें से 38 उठा रहे। अब 38 की किस्मत जो है मौलाना फिकर जान साहब बहुत बहुत मुबारक, जिसको नहीं उठा उनको मुबारक, जिसको उठा उनको मुबारक। अब 1 नंबर से लेके 25 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 25 नंबर, ये 7 वार्डा है। 7 वार्डों के बीच में टोटल हमारे पास जो नाम आए थे 116, उसमें से 38 लोगों को दिया जा रहा। अब बिस्मिल्लाह लिख के पहला शुरू करिए। मैं वार्ड नंबर 1 के इंचार्ज से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ पर आए डाइस पर। वार्ड नंबर 1 के इंचार्ज। वार्ड नंबर 1 इंचार्ज। वार्ड नंबर 5 सलमा खातून वार्ड नंबर 5। हाथ उठाओ आप है। ओके डन। खैरुनिसा बेगम वार्ड नंबर 25। हाथ उठाइए अम्मा, है आप? ओके। शमीम बेगम वार्ड नंबर 5। सैयदा परवीन वार्ड नंबर 25। हाथ उठाइए अम्मा। आज भाई आपसे गुजारिश है, सामने आइए। शाहीन वार्ड नंबर 3। शाहीन वार्ड नंबर 3। हाथ उठाइए अम्मा। अलमाज बेगम वार्ड नंबर 5। अलमाज बेगम वार्ड नंबर 5। साजिया बेगम वार्ड नंबर 3। शाजिया बेगम वार्ड नंबर 3। फरजाना बेगम वार्ड नंबर 5। राबिया बेगम वार्ड नंबर 4। राबिया बेगम। इरफाना बेगम वार्ड नंबर 5। ओके। 5। फरहीन बेगम वार्ड नंबर 25। फरहीन बेगम, हाथ उठाइए अम्मा।